سر آپ کی امانت کو آپ کی بتائی جگہ پر پہنچا دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ کے قریب ہی کسی ہوٹل میں اسے پہنچاتے فروا نے اسے پیغام پہنچا دیا تھا جس نے اسے وہاں سے نکلنے کو کہا، اور اس کے نکلتے ہی وہ اندر داخل ہوا تھا۔ بھاری بوٹوں اور چہرے پر سنجیدگی کے تاثر لیے وہ فرشتے کے قریب بڑھا اور پھر اس کے بیڈ کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھا جو اب بھی بے ہوشی کی حالت میں ہی تھی۔ اس کے چہرے پر اپنے ہاتھ کی پشت کو پھیرا تو وہ نیم بے ہوشی میں ہی کسمسائی، جیسے بے ہوشی میں بھی یہ لمس پسند نہ آیا ہو۔ وہ شخص کرسی سے اٹھا اور پھر اس کے ساتھ بستر پر بیٹھا جیسے دل کو اس کا دور بیٹھنا پسند نہ آیا ہو۔ اس نے فرشتے کے چہرے پر پھر سے ہاتھ کی پشت پھیری اور پھر اس کی نگاہوں کو انگلی کے پوروں سے چھونے لگا، پھر اس کی آنکھوں کو انگلی کے پوروں سے چھونے لگا۔ فرشتے نے ذرا سی آنکھیں کھولی، اس شخص کو اپنے قریب دیکھا تو آنکھیں پھر سے بند کر لی۔ ہنی اذلان اظہر جھکا تھا، اذلان اظہر اس کی طرف جھکا تھا۔ فرشتے نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما اور پھر خود سے دور کیا جو اذلان اظہر کو پسند نہیں آیا۔ اسے اس دنیا میں وہ ایک ہی لڑکی تھی جو بے بس کر دیتی تھی، جس کی قربت کی چاہ اس میں مرتے دم تک ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ دور رہو۔ وہ اب بھی اس دوا کے زیر اثر تھی جو اسے دی گئی تھی، کیونکہ اذلان اظہر نہیں چاہتا تھا وہ اسے پورے ہوش و حواس میں ملے۔ ہوش و حواس میں وہ کہاں اسے خود کے نزدیک آنے دیتی، اور اذلان اظہر میلوں دور اس کی خوشبو اور لمس کے لیے ہی تو تڑپ رہا تھا۔ تم سے دور ہی رہا ہوں میں مہینوں، اور تم نے یہاں رہتے میرے ہر حکم کی خلاف ورزی کی ہے ہنی، سزا تو بنتی ہے نا۔ اذلان اظہر نے دل میں مہینوں بعد سکون اترتا محسوس کیا۔ کاش تم اپنے ہوش حواس میں مجھے ملتی، وہ کہتا اس کے گالوں پر لب رکھ گیا۔ فرشتے اذلان اظہر، یہ بات کبھی مت بھولنا کہ اذلان اظہر تمہارے لیے پاگل ہے، بے حد دیوانہ، اور میری دیوانگی اس بات سے واضح ہوتی ہے کہ میں لاکھوں کی میٹنگ چھوڑتا گھنٹوں سفر کر کے صرف تمہارے لیے یہاں آیا ہوں۔ وہ بولا اور وہ پھر مسکرا دی۔ میری آنکھیں کیوں نہیں کھل رہی؟ یہ میرے جانے کے بعد ہی کھلیں گی میری جان، اذلان نے اسے خود سے لگاتے کہا۔ سر اس حسن نامی شخص کو پکڑ لیا گیا ہے، کیا کرنا ہے آگے؟ اسے اطلاع دی گئی تو اس نے فرشتے کو دیکھا۔ میں آ رہا ہوں 10 منٹ میں۔ اوکے سر، اس کے بعد آپ کی فلائٹ بھی ہے۔ اوکے، وہ کہتا فرشتے کے نزدیک ہوا تھا۔ اذلان نے اسے جھٹکے سے اٹھا کر بٹھایا جیسے اسے کچھ ہوش میں لانے کی کوشش کی ہو، اور چہرے پر سخت تاثرات سجا لیے۔ فرشتے، مجھے سن رہی ہو؟ اذلان، فرشتے نے آنکھیں کھولتے اس کے چہرے کو چھونا چاہا جیسے یقین کر رہی ہو کہ واقعی وہ موجود ہے یا نہیں۔ تمہیں سمجھایا تھا نا کہ ان دوستوں سے اپنے دور رہنا تم۔ اذلان نے اس کے بازو سے تھامتے سخت لہجے میں بولا تو وہ سہم گئی لیکن کوئی حرکت نہیں کر پائی۔ کل سے تم گرلز کالج جاؤ گی، اور اگر دوبارہ لیپ ٹاپ توڑا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ فروا، اس نے نمبر ملایا اور فون کان سے لگایا اور اسے دیکھا جو بند ہوتی آنکھوں کو زبردستی کھولتے اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرشتے کو گھر پہنچاؤ اور میرے بیگ سے لیپ ٹاپ نکال کر پہنچا دینا، اور اٹھنے کے بعد اس کو دوا دینی ہے تاکہ اس کے سر میں درد نہ ہو۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اوکے سر، فروا نے تابع داری سے کہا۔ تم کل سے فرشتے کے ساتھ رہو گی، کالج کا انتظام میں کروا چکا ہوں سارے۔ جی سر، اور کال کٹ گئی۔ اذلان واپس مڑا اور اس کی طرف آیا۔ جلد ملاقات ہوگی آپ سے۔ وہ جھکتا اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑتا پیچھے ہوا اور پھر بنا مڑے واپسی کے راستے پر نکل گیا۔ اس نے حسن پر کیس کرتے اسے اریسٹ کروا دیا تھا اور واپسی کی فلائٹ پکڑ چکا تھا۔ اب اسے سارا کام مکمل کرنا تھا وہاں کا۔ فرشتے کو فروا جیسے لائی تھی ویسے ہی واپس پہنچا چکی تھی، لیکن یہ ملاقات فرشتے اور اذلان اظہر دونوں ہی نہیں بھولنے والے تھے۔ اگر مجھے اگلے 10 منٹ میں اس کی لوکیشن نہ ملی تو تمہارا آخری دن ہوگا اس دنیا میں، وہ دھاڑ رہا تھا، کیونکہ انتظار کرتے اسے مزید 1 گھنٹہ گزر چکا تھا، اور اگلے 10 منٹ میں اسے لوکیشن مل بھی گئی تھی جو یہاں کی نہیں تھی لیکن پاس ہی موجود شہر کی تھی۔ وہ تیزی سے گاڑی ڈرائیو کرتا وہاں پہنچا۔ گھڑی اب رات کے 11 بجا رہی تھی۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ گاڑی روکی اور باہر نکلتا اس گھر کو دیکھنے لگا جو خوبصورت تھا لیکن تھا چھوٹا سا۔ وہ لمبی اور گہری سانس بھرتا قدم بڑھاتا دروازے تک آیا اور دروازہ بجایا۔ کونین؟ جی بابا۔ بیٹا دیکھیں دروازے پر کون ہے اس وقت؟ کھڑکی سے ہی دیکھ لیں۔ اوکے۔ کونین جو اپنا یونیورسٹی کا کام کر رہی تھی اٹھی اور کھڑکی سے باہر کا منظر دیکھنا چاہا لیکن اندھیرا تھا۔ بابا کوئی نظر نہیں آ رہا، لائٹ جلائیں نا باہر کی، انہوں نے کہا تو کونین نے باہر گیٹ پر موجود لائٹ کو جو آج جلانا بھول گئی تھی جلائی، اور اس شخص کو دیکھتے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ یکدم اسے اپنی دھڑکنوں کا شور کانوں تک آتا سنائی دیا۔ کون ہے بابا؟ وہ کوئی نہیں، کوئی نہیں، آپ سو جائیں جا کر، اس نے کہتے ہی بیل بند کر دی پیچھے سے۔ اچھا چلو، دوبارہ بیل ہوئی تو بتانا، میں خود ہی دیکھ لوں گا، رات ہو گئی ہے۔
ओके बाबा जान, अब आप सो जाएं। वो उनके कमरे का दरवाज़ा बंद करती बाहर निकल आई और टीवी लाउंज में यहाँ से वहाँ चक्कर काटने लगी। इतनी जल्दी वो उसे ढूंढ भी चुका था। नहीं, वो उंगलियां चटका रही थी। उसका फ़ोन मुसलसल वाइब्रेट हो रहा था। वो जानती थी कौन है जो उसे मुसलसल फ़ोन कर रहा है। क्या दादा जान ने बताया होगा उसे? नहीं, वो वादा नहीं तोड़ सकते। लेकिन शायान उस्मानी ने उसे ढूंढने में 2 हफ्ते लगाए थे और उसे लगा था उसे महीनों लग जाएंगे। अब की बार गेट हाथ से बजाया गया। मुखालिफ जैसे आज खाली हाथ जाना ही नहीं चाहता था। अगली बार गेट बजा तो वो तेजी से गेट के पास गई। वो उस शख्स को अपने बाप के रूबरू करना नहीं चाहती थी। अगली बार गेट बजा तो वो तेजी से गेट के पास गई। वो उस शख्स को अपने बाप के रूबरू नहीं करना चाहती थी। अभी नफरत का दावेदार सिर्फ शायान उस्मानी था उनसे। लेकिन अगर उन्हें पता चल जाता कि उसने उनकी बेटी के साथ क्या किया है तो ये नफरत यकतरफा हरगिज न रहती। उसने खिड़की खोली और उस शख्स को देखा जो अभी भी खड़ा था। कौन है? वो धड़कते दिल से अनजान लहजे में इस्तफसार करने लगी। कौनैन शायान उस्मानी, दरवाज़ा खोलो, नहीं तो अब की बार मैं इस जोर से बजाऊंगा कि सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाएगा तुम्हारा। हम आपको नहीं जानते। बराए मेहरबानी जहाँ से आए हैं वहीं लौट जाएं। वो सर्द लहजे में बोली। गेट खोलो। नहीं। और शायान उस्मानी ने गेट पर हाथ रखा ही था कि कौनैन ने दरवाज़ा खोल दिया। रात के उस वक्त किसी तरह के तमाशे की मुतामिल नहीं हो सकती थी वो। दरवाज़ा खोलती वो अंदर चली गई तो वो भी दरवाज़ा लॉक करता तेज़ी से उसके पीछे आया जहाँ वो शायद अपने कमरे में गई थी। इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करती, शायान ने दरवाजे के दरमियान अपना बूट रखा और खोलता अंदर दाखिल हुआ और गेट बंद कर दिया। क्या चाहते हैं? तुम्हें? जवाब सादगी से आया था। क्यों? आपकी खाला मोहतरमा को अभी भी सुकून नहीं आया, या बदला पूरा नहीं हुआ अभी उनका, या शायद कोई और इंकशाफ? चलें बोलें, सुन रही हूँ मैं। कौनैन बेखौफी से उसकी आंखों में आंखें गाड़ती बोली। शायान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो तेजी से अपनी जगह से उठती पीछे को कदम बढ़ाने लगी। फासले पर रहकर बात करें और जो बोलना है जल्दी बोलें। मुझे गेट लॉक करके सोना है। शायान ने उस जालिम को देखा जो बदल गई थी। वो कौनैन हैदर थी ही वो कौनैन खावर थी ही नहीं जिसे वो जानता था, जो उसके लिए मोम थी, जो उससे आहिस्तगी और नरमी से बात किया करती थी, उसकी कुर्बत पर लाल गुलाबी हो जाया करती थी। लेकिन ये कौनैन कोई और ही थी, जो बागी और सर्द आंखों से उसे देख रही थी और उससे दूरी पर मजबूर कर रही थी उसे। क्या मेरा करीब आना भी बर्दाश्त नहीं है तुम्हें अब? बिल्कुल नहीं। वो बोली तो शायान ने तेज़ी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसे दीवार के साथ लगाया और वो उसे गुस्से से देखने लगी। माफ़ी किस सूरत में मिलेगी? वो उसके बाजुओं के पीछे कमर पर हाथ बांधता संजीदगी से पूछने लगा। धुतकार दिए जाने की और धोखों की माफ़ी नहीं होती शायान उस्मानी, कफ़ारा अदा करना पड़ता है। और मेरा कफ़ारा क्या है? यही कि आपको कभी मैसर ना हूँ मैं। वो बोलती उससे नज़रें चुरा गई। लेकिन शायान उस्मानी का दिल चीर गए थे उसके ये अल्फाज। तुम इतनी जालिम कैसे हो सकती हो? शायान ने उसकी तरफ झुकते हुए कहा। आपसे सीखा है मैंने कि जब कोई शख्स आपसे मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाए तो उसे दुनिया के सामने धुतकार कर उसकी औकात बता दो। उसे बता दो कि वो एक आम इंसान है जिसका मुतबादिल कोई भी हो सकता है। और पता है, इस दुनिया में मेरे लिए आपका मुतबादिल भी। शायान ने उसके बालों को पीछे से थामते उसका चेहरा ऊंचा किया कि उन दोनों के चेहरे एक दूसरे से बहुत करीब हो गए और दोनों के नाक एक दूसरे से मिस हुए। मेरा मुतबादिल तो ढूंढना भी मत, क्योंकि इस गुनाह पर तुम मेरे हाथों ही मारी जाओगी। छोड़ें। कौनैन ने उसकी सांसें खुद के चेहरे पर महसूस की तो हार मानते उससे दूर होने की जिदोजहद करने लगी। और अगर मैंने अमानत में खयानत की ना कौनैन खावर, तो तुम जानती हो कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी किसी भी औरत को मेरे यूं करीब जिस तरह तुम हो। वो बोला तो कौनैन ने तड़प कर उसे देखा। वो दोनों जानते थे कि एक दूसरे की कमजोरियां क्या हैं। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि मैंने जो लम्हात तुम्हारे साथ गुजारे, जो सब हमने साथ जिया, वो सब किसी फरेब का हिस्सा था? शायान उस्मानी, अगर ये सब बंद दरवाजे में हम दोनों के दरमियान होता तो ना तो शायद मेरे दिल में कोई गुंजाइश निकल आती। लेकिन आपने मर्द होने का सबूत देते वहाँ भरी महफिल में। उसकी आवाज़ रुन गई। मैं उस भरी महफिल में माफ़ी मांगने की सकत और हौसला दोनों रखता हूँ।
तुम यकीन दिलाओ कि माफ़ कर दोगी। बस मुझे तुम्हारा दिल में अपना खोया मकाम चाहिए, वो अब मुमकिन नहीं रहा। बाबा उठ सकते हैं, अब जाएं आप यहाँ से, और अगर नहीं चाहते कि मैं ये घर भी छोड़ दूँ तो दोबारा मत आइएगा यहाँ कभी। वो उसे धक्का देती साइड से निकलने लगी। शायान ने उसे खींचकर दोबारा अपने सामने किया था और अब की बार दोनों हाथ उसके दोनों अतराफ में दीवार पर रखे और शोला बार निगाहों से उसे घूरने लगा। कौनैन ने उसे 2 हफ्तों बाद यूं करीब से देखा था। बिखरे बाल, बढ़ी हुई दाढ़ी, आंखों के नीचे हल्के और भिंचे होंठ। वो उसकी बर्दाश्त आजमा रही थी, जानती थी, लेकिन फ़र्क किसे पड़ता था। वो तल्खी से मुस्कुराई। माफ़ी यूं ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं मांगी जाती। उसका इशारा शायान का यूं उसे थामे रखने पर था, लेकिन शायान उसे देख रहा था जैसे अब की बार आंखों में उसका एक एक नक्श बसाना चाहता हो। क्या पढ़ रही हो आगे? वो उसकी यूनिवर्सिटी की बुक्स बाहर फैले देख चुका था। वो ऐसे ही झुका, उसके एक एक नक्श को देखते इस्तफसार करने लगा, जैसे उनके दरमियान सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल हो। कौनैन ने जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा तो शायान ने झुकते अपने दांत उसके गाल पर रखे कि कौनैन ने उसके सीने पर हाथ रखते उसे बाज रखना चाहा। जाएं यहाँ से प्लीज़, वो नम आंखें लिए बोली तो शायान ने पीछे हटते उसके उसी गाल को हाथ की पुश से सहलाया। तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी, घर में पढ़ोगी, मैं आपके हुक्म की ग़ुलाम नहीं हूँ। वो तेज़ी से बोली और पीछे हटी। निकलें फ़ौरन। और उसने दरवाज़ा खोला और शायान को बिना देखे बोला। शायान का दिल दर्द से भर गया था उसके इस लहजे पर। काश तुम इस अजियत को कभी महसूस ना करो जो इस वक्त तुम मुझे दे रही हो, वो कहता तेज़ी से उसके पास से निकल गया। कौनैन छोटे कदम उठाती गेट उसके पीछे तक आई और लॉक करने लगी। शायान ने उसे मुड़ते देखा जो नम निगाहों से उसे ही देख रही थी, और फिर उसके पास वापस आया और उसके गाल पर झुका। अब की बार कौनैन ने पीछे कदम नहीं लिए थे। शायान ने उस जगह पर कई बार अपने लब रखे और फिर चेहरा उठाया और उसके कंधे को अकीदत से चूमा। माफ़ बेशक ना करो, लेकिन खुद से महरूम मुझे कभी नहीं करना कौनैन शायान उस्मानी, क्योंकि उसके बाद जो होगा वो हम दोनों के लिए अच्छा ना होगा। वो कहता बाहर निकल गया तो वो दरवाज़ा लॉक करती तेज़ी से अपने कमरे में आई और बिस्तर पर गिरकर रोने लगी। बाबा मैं शादी करना चाहता हूँ। आज़म अज़हर ने उनके सर पर धमाका किया। लेकिन तुम तो फरिश्ते, मुझे किसी और से शादी करनी है और इसी महीने में करनी है। वो संजीदगी से बोला तो उसके बाप ने उसकी माँ को देखा जो खुद भी हैरान थी। कौन है वो? ज़ारा अकबर, हमारी कॉलोनी में ही रहती है। उसके भाई का नंबर है, आप उनसे बात कर लें और उनसे मिल आएं। उसने उनको फ़ोन नंबर थमाया और सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। क्या तुम्हें उससे मोहब्बत है? कैसे जानते हो तुम उसे? नहीं, उससे मुझसे मोहब्बत है और मैं देखना चाहता हूँ कि ये मोहब्बत कब तक रहती है। वो आहिस्तगी से खुद से बोला। जी जानता हूँ, मुझे पसंद आ गई है वो, आप बात कर लेंगे? अज़हर साहब ने फौरी तौर पर उन्हें फ़ोन मिलाया था कि आज़म अज़हर की बात वो कभी ना टालते थे। फ़ोन करते उन्हें मिलने का बता दिया और फिर कुछ ही घंटों में कल का दावतनामा भी उन्हें मौसूल हो गया था। आज़म अपने कमरे में बंद हो गया था। कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं। अपनी मोहब्बत उसे नहीं मिली थी, लेकिन उस लड़की की मोहब्बत वो आजमाना चाहता था। उसे ज़ारा पर एक आंख ना भाई थी। आगाज़ से ही वो खुद ही किसी मर्द को अप्रोच कर रही थी, और वो भी एक बार नहीं बार बार। वो जिच हो गया था उसके बरमलाए तराफ़े मोहब्बत सुनकर, और अब वो उस लड़की को जिच कर देना चाहता था। देखना चाहता था कि वो सच में उससे मोहब्बत करती भी है या सिर्फ उसके स्टेटस तक पहुंचने के लिए ये सब कर रही है, क्योंकि उसकी मालूमात पर पता करवाने पर उसे सब मालूम हो गया था कि उनका बाप नहीं था, और ये घर भी उन्होंने बमुश्किल किराए पर लिया था, और दोनों भाई आम सी नौकरी कर रहे थे। उसे लगा कि एक आम मिडिल क्लास लड़की की तरह वो भी किसी अमीर लड़के को अपनी मोहब्बत से ज़ेर करना चाहती है। इसलिए उसने अकेले मिलने के लिए उसे बुलाया ताकि उसे जांच सके। उसे लगा वो नहीं आएगी, लेकिन वो आ गई, और ये बात उसे मज़ीद नागवार गुजरी थी। वो जो अनजान शख्स को मिलने आ गई थी कहीं भी। अगले दिन अज़हर साहब उसे पसंद करते, बात आगे बढ़ाते। उन्हें बता चुके थे कि आज़म अज़हर इसी महीने निकाह और रुखसती चाहता है, जिस पर उन्हें ज़्यादा एतराज़ नहीं था। लेकिन जिसे एतराज़ था वो खामोश थी, क्योंकि मामला बिल्कुल उसे समझ नहीं आ रहा था। उनके निकाह की तारीख भी रखी जा चुकी थी, क्योंकि उसके भाई आज़म अज़हर को अच्छे से जानते थे और उससे निजी तौर पर मिलकर बात भी कर चुके थे, और उन्हें वो काफ़ी पसंद भी आया था। ज़ारा अपने कमरे में आ गई थी। उसकी भाभियाँ और वालदा शॉपिंग पर गई थी। उसने फ़ोन उठाया और उसका नंबर मिलाया। वो ये रिश्ता कैसे शुरू कर सकती थी? दिल में हज़ारों खदशात लिए। अस्सलामुअलैकुम। आज़म अज़हर की आवाज़ आई तो उसकी हथेलियाँ भीगी। वालेकुम अस्सलाम। खामोशी का दौरानिया बढ़ा था। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
खुश हूँ। और ज़ारा अकबर मज़ीद बेचैन हुई। आज़म, आप ये शादी क्यों कर रहे हैं? शादियाँ क्यों की जाती हैं ज़ारा? लेकिन आप तो फरिश्ते से मोहब्बत, तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, लेकिन बोलो, मुझसे मोहब्बत करती हो? जी, पर हम तुम्हारी मोहब्बत पर गुजारा कर लेंगे, आज़म अज़हर ने हल्के फुल्के से अंदाज में कहा। लेकिन अचानक ये सब, तुम नहीं चाहती ये निकाह? आज़म आप बात को गलत रुख दे रहे हैं। मैं सिर्फ आपको जानना चाह रही हूँ। आपको तो मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, और अब अचानक। बस, जो लड़की मुझसे मेरे एक बार कहने पर मिलने आ सकती है, उसके साथ ज़िंदगी आसान ही गुजरेगी, ऐसा मुझे लगा। वो तल्खी से बोला, लेकिन मुखालिफ महसूस ना कर सका। आप खुश हैं ना आज़म? मैं ज़बरदस्ती मुसल्लत नहीं होना चाहती आप पर। मैं मुतमईन हूँ, और खुश तुम करोगी मुझे आकर। कैसे, ये तुम जानती हो? वो मायनी खेजी से बोला तो वो गुलाबी हुई। और निकाह की पेशकश मेरी तरफ से हुई है। ज़बरदस्ती मुसल्लत तो कोई किसी पर हो ही नहीं सकता। ज़ारा के दिल में मौजूद आखिरी फांस भी निकल गई, तो वो सच्चे दिल से मुस्कुरा दी। मैं बहुत खुश हूँ, वो बिलाखिर बोली, तो दूसरी तरफ आज़म अज़हर ने मुठ्ठियाँ भींची। मोहब्बत पा लेने के बाद लोग खुश ही होते हैं। मैं आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, वो सच्चे दिल से बोली। मैं तुम्हें कोई गलती करने दूंगा ही नहीं, डोंट वरी। मैं तुम्हें कोई गलती करने ही नहीं दूंगा, डोंट वरी। वो फिर से तल्खी से बोला। आज़म, बोलो, आप हमारे निकाह का ड्रेस मेरे साथ लेने चलेंगे ना? मैं चाहती हूँ मेरी सारी चीज़ें आपकी पसंद की हों। ओके, कल तैयार रहना। ठीक है, वो खुशी से बोली थी। वो कितनी खुश थी, ये उसका लहजा बता रहा था आज़म अज़हर को। चलो कल मिलते हैं। आज़म, क्या आपको मेहंदी पसंद है? कुछ ख़ास नहीं। वो जो मेहंदी की शौकीन थी, और ख्वाब था उसका कि अपनी शादी पर भर भर के हाथ पैरों पर मेहंदी लगाएगी, दिल महसूस कर रह गई। ठीक है, मैं हल्की सी लगवाऊंगी बस। और क्या क्या पसंद है आपको? ज़ारा, हम मिलते हैं, अभी मेरी एक मीटिंग है। ओके ओके, खुदा हाफिज़। वो तेज़ी से कॉल काट गई तो आज़म अज़हर खुश्क सा मुस्कुरा दिया। देखते हैं तुम कितने इम्तहानात में पास होती हो ज़ारा अकबर। वो न जाने क्या क्या सोचे बैठा था। और दूसरी तरफ वो जो 2-3 दिन से परेशान थी, अब खुशी से चहकने लगी थी। अपनी तैयारियां खुद जोशो खरोश से करने लगी थी कि घर वाले देखते रह गए। आगे उसकी किस्मत में क्या लिखा था, इस सब से बेखबर।